these the awareness, that thing we are doing, that is only possible when we are in the coexistence with the body. But when we leave the body, is it not possible? Is it right, Bhaiya? Because when we are looking at the self, that means we are getting the instructions from you, we are listening you, that means we are using our body. We are using our body to get the information from outside. Then we go to introspect or become aware of the self, or we do all these exercise and to see the self. So that means that is only possible when we are with the body. So is it possible that without body also this can be done? So भैया, if these two realities are distinct, and if I am able to see it, then I can observe myself anytime without the help of body. So in exercise 1 of step 1, this process of observation, are we using body to observe myself? So for example, if I ask you, just check within you, are you comfortable or uncomfortable this time? Can you tell me or not? Yes or That no? is true, Bhaiya. That's true. We can tell. That's true. Uh, And how you have observed this? Through the help of body or directly within the consciousness? no, they directly with the consciousness. Yes. So body is not required. You can see it directly because you are a distinct reality. So you have not used your body. So it doesn't matter whether you are with body or not. You can observe yourself because I have direct potential to see myself. Even many times you do not remember that your body is with you. Many times you are indulged within your activities so much that you forget about the body. Does it happen or not, Bhaiya? Yeah, that's true. That happens, but that we are able to express through our body only. Uh, but all the So, development of the consciousness and transformations, all these transformation process will happen when we are existing with the body, or that was my questions. When we are yes, without the Bhaiya. So body. with the body, we are taking information from outside. So for example, I am communicating some process and I need body to communicate this process. I need senses. You are listening this process because you have this body. But once you have listened all the proposal, then with the help of proposal, you can observe within yourself directly. So body role is to communicate the process to you. Once you have listened, you can observe yourself without using any senses. So for example, in night, many times you are not aware where is the body during sleep. But during sleep, many things you are doing in your consciousness. Yeah, although we are doing, we are not aware actually those things. Yeah. So Yes, that's so why we keep are it doubt open here. whether this is possible or not. So keep it open. First, you observe whether it is possible with body or not. So I am observing myself. Is there any role of my body? So explore these small proposals, then maybe, and till then we can keep it open. Sure, sir. Sure. Okay. Yes, ma'am. Okay, thank you, Bhaiya. Thank you. So we can take one more reflection. So we have Pramod Kumari ji with us. Namaste, Didi. Namaste, Bhaiya. Namaste to all the Yes. co-explorers.
Yeah, yesterday I observed about the body and the self. Like when I drive, I hold the steering wheel with the hand. So it is the body which is doing, but until I supply the directions, how to move, which side to take, then directions are coming from inside. So from this, I conclude that yes, I exist and body exists. Another example, suppose if I'm preparing tea, then I'm just holding the pan and then I put the content into a cup with the hand. So body is doing its role, but whether to have the tea very hot or to wait for some time, it is decided by me. So by this way, when I write, I hold the pen, but no ideas are generated in my mind, I won't be able to write anything. But if ideas are generated and supplied to me, then I will be able to write. So I observed it in this way. Okay. Yeah. Okay. So we are discussing this step just to see that body and the consciousness are separate reality, are distinct reality. This is just Yes. we are trying to see. Right? So there Yes. could be many example, and few Yes. example you have quoted by Didi. Yes. So Bhaiya, nice. yeah. Let's Ji. Here is one thing, Bhaiya. Suppose whenever I stuck between long and big vehicles in a traffic jam, I can't see any open space, even on either of the side. I feel very suffocated and feel like immediately just finding a space to go somewhere. So, Bhaiya, is that felt by self that is in the body or in the self? Yes, Didi. So you need to check because of the internal reaction. You are feeling this, or Yes. there is some another issue. So Yeah, you are internal. stuck in traffic. Definitely your AC will be on, and Yeah. your glasses will be closed, doors will be closed. You are sitting in a car. Yes. There So is a conducive temperature due to that AC, and body is relaxed. Now, yes. why we are feeling suffocation? Is it because of some internal reaction, or is it because of issue of body? That we need to check, Didi. Yeah, the physical atmosphere is like outside physical atmosphere is affecting me. Yes. Yeah. So it is affecting me, and I am not finding any solution. Yeah. That's why I am feeling suffocation. Yeah. Discomfort. This could Yes. be one possibility. If it is, then I need to work on myself. Right. Yes. 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 Yeah. It is happening because outside environment is not going on according to me. Yes. Yes. Yeah. So It if is. this is the case, then I need to go from step 1 to step 7 of exercise 1. Yes. Yes. Yeah. In my case, it is self. Now I got it. It is the self which is disturbing me. Yes. So Okay. it Yeah. is self which is disturbing me, rather than we should say it is my sanskars that are creating disturbance in my consciousness. And I Yes. need to observe those sanskar. And I need to align those sanskar with relationship, harmony, and coexistence. So I Yes. need Yeah. to work for my self-development, for my transformation. Yes. Yeah. Right, Didi? Yeah. Thank you so much, Priya. Thank you. Okay, Didi. Namaste. Namaste, Priya. Yes. So let's take one more sharing before going for observation. So we have Kavita Ji with us. Namaste, Bhaiya. Namaste, Didi. Namaste to all. Bhaiya, I could observe few things yesterday. Whether my observation is correct, I just wanted to share my experience, Bhaiya.
Bhaiya, I have the problem of allergy reaction. So when I enter a AC environment suddenly from an external environment, I usually have some disturbances. So when I entered the metro train or my classroom yesterday, uh, I was controlling myself, was saying I should not sneeze or I should not cough because I started acquiring something. My body started to out of my control. I started to sneeze and I started to cough, but I couldn't control at all. Uh, there I could experience that myself is not uh, instrumenting my body. It is not able to control. So both are. I'm thinking something, but my body reacts in another way. This is one thing, Bhaiya. And the other one I wanted to share is my daughter want to be with her unless she completes her studies in the yesterday night. I was sitting with her. I made my mind that I have to be with her unless she completes because she needs some support, moral support. So I made myself wants to be with her, but my body gradually started close. My eyes started closing because my body was aching actually. So I almost slept better. So myself thought I have to be there, but my body was not in a position to be awake. So I went to a state of sleeping. My eyes started automatically closing. So these two situations, I was able to observe that myself and body are uh, both exist, but they are two separate units. Is my experience and observation correct way? Yes, Didi. So these are two separate units, number one. Yes, Number Bhaiya. two, because body is a material unit, Yes, so Bhaiya. it has certain limits. Okay. After that limit, it needs rest. Yes, Bhaiya. Number Yes. two, this material unit, this body is self-organized unit. Yes. So it is working in own manner. Yes, Bhaiya. So in a self-regularized manner, it is working. Okay. So like this sneeze. Mm. So this is an indication that something is happening in my body, and now this body needs to throw some uh, material outside because it is not good for body. Okay, okay. So it is working in its own manner, in a self-organized manner. Yes. Huh? Okay. So this is a material unit. It has certain limit, and it is working in a self-organized manner. Okay. So Yes. this unit exists distinctly than me, Yes. right? Okay. And Yes. I have also this self-organization. When I am able to see this self-organization in myself, harmony in myself, Mm. then I can be in harmony every moment Okay, okay. because I am a distinct reality than body. Okay. That's why the way to be in harmony for me is different. The way to be in harmony to the body, Mm. Yes. Okay. because these two are distinct realities. Right, Oh, Didi? okay. Okay. But I wanted Then to we will share. see more steps in coming slides. Yes, Okay. Didi, you are saying something. No, I wanted to share, Bhaiya, the exercise one. I've started observing and exploring myself. Yesterday also there was a situation where I reacted initially, but quite a few minutes, maybe I reacted actually. A few minutes I observed. Maybe I mean the other self has the happiness in moving outside, enjoying with others and all those things. So I said, okay, let them enjoy. So I just kept quiet. Okay, I just gave up. So, I didn't want to react further. Um, is my way observing correct, Bhaiya? Should I keep quiet or? Uh,
in the case of my spouse moving out of station immediately without no information and all, I just reacted actually. Should I react, or I reacted first for a few minutes and then I immediately, okay, maybe it's his happiness that he wanted to be in that way. So I'm able to observe certain things, and sometimes I react out of my control. So I am trying to do the exercise once still, and I don't know. I will continue with it. But yeah, I just wanted to share that. That's all. So somehow if I have reacted inside, Yes, है ना, then don't react it again on this first reaction. Be aware that I reacted few seconds back. Now start observing yourself yes, Bhaiya. Yes, sure, Bhaiya. and evaluate your feeling Yes, Bhaiya. and remind yourself that I need to align my all sanskar Yes, with Bhaiya. coexistence, relationship and harmony. Yes, yes. Yes, Didi. I've explored. Okay. I'm exploring every moment and time. The exercise one, and now we have started with exercise two. It is very excellent, Bhaiya. Thank you so much for guiding us. Thank you, thank you. Okay, Didi. Thank you very much, Didi. So we have two hands raised, R.K. Mohanty ji and Purvi Nisar ji. So let's take 10-minute observation, then I will come back to both of you. Right? So it's 6:07. So we will come back around 6:18. Then I will take reflection from Mohanty ji and Purvi Nisar ji. So during these 10 minutes, let observe yourself, observe body. Just sit peacefully and see how much time you are aware of your body. And once you are aware of your body, how do you know that this is my body? How do you know that now I am observing myself? So just check for this 10 minutes, then we will come back to Mohanty ji and Purvi Nisar ji.
नमस्ते सभी को. Let's come back. Yes. So we have Purvi Nisarji with us. Namaste. नमस्ते Didi. भैया. Namaste. नमस्ते सभी को. Am I audible भैया? Yes, Didi. Yes. Yes. Okay. So actually I'm on a trip. So when I came here, I remember that I was not in a good mood. Matlab my thoughts were really very negative. And even though we all were together and we were going out and all, but sometimes due to certain incidents, I used to feel bad, and I used to decide that I want to be aloof. I don't want to be, I don't want to talk to them maybe, or I want to stay away. I want to walk alone, or maybe something like that. And my body was following my instructions, I would say. So I was doing that. And then once we had a heated argument, and I realized that I have some negative thoughts and feelings in me, because of which I'm spoiling my trip, and I'm spoiling my other family members' trip also. So then again, I decided after the arguments and certain discussions that okay, I will try to be normal. And after I decided that, my body mostly reacted in that manner. Even if sometimes I will feel bad and my body will react in a negative manner, but again, when I realize, I'll again come back to the positive thing. And yesterday, again, something like that happened. So, mm I have my nephew's wife, and we all were playing together. So, we had some discussion in a game. So, again, there was a heated argument. But somewhere I had this in my mind that okay, she's young and I don't want to. Uh, matlab, now for last 2 days I don't want anything wrong to happen, so it's okay, let it be, and she'll understand. So after the heated argument, she went somewhere out, and we were also like we were sitting. Matlab, I and my sister, we were sitting separately, and she and my nephew, her husband, they were sitting separately, and we were talking. But then at that time, I had that thought in my mind that I want to be on a positive note, and so I was not having any negative thoughts for her. So even when after that, when I thought that I would like to break the ice for last 2 days, I don't want this to continue. So I could do that. That I could talk very normally to her. I could say her sorry or whatever. So that happened, and after that, today morning when we went out, all of us together, so we were in a shop and we were shopping, and at that time when she came to me, I only asked her for something, and she came to me and she told me something. But at that time, I could notice that again I had, due to my negative, due to my sanskars, I would say, but then some negative thoughts and feelings came up again. So I could notice them, and I could compare those negative feelings with yesterday's positive feelings also. And but I was so aware that I instructed my body not to behave in a way that would seem negative to her. So inside I was feeling negative, but outside I acted in a way as if I was normal. So yeah, so that I could see. Yeah, so I would like your reflection on it. Ji, Didi. Yeah. So 2 things I want to add in your sharing. Mhm. Yes, Priya. Number one is, once I am aware that I am responsible for my decision, Hmm. then what we need to do? Now we need to make effort for my self-development, for Hmm. my development. And we need to make effort to focus on relationship.
harmony and Hmm. coexistence, right? So now I will ask myself what feelings are naturally acceptable to me, relationship or opposition, and then what feeling are at this moment. So you will find a gap. Right, right. Now I have to work for this gap by focusing on relationship, by focusing on harmony. And this gap can be fulfilled by only me. No one other. No other can fulfill this gap. No one else. Yes, Bhaiya. So if I am aware of this, then I will be determined to work for myself. Number one. Number two, I am not expressing it outside. This is one part. Right. But it is disturbing my sanskars inside because I am in a reaction. So I am in a reaction. So it is disturbing my imagination. It is disturbing my other sanskar also. And its intensity will increase in future. Right. So this is at priority that I need to work. I need to make effort for my development. Then you start with observation, then step 2, 3, that we need to do continuously. And positive feeling means those feelings which are naturally acceptable to me. I'm sorry, I didn't get you. Can you please repeat the sentence? Positive feeling means those हाँ, feelings those which are are naturally हाँ, acceptable. naturally acceptable. Yeah, true. And I need to ensure these naturally acceptable feeling at every moment. Right. If you are, even you are not expressing outside, but it will be impacting your body. So if I am aware of this, I will make effort for my self-development through exercise 1. So this Yes, right. exercise 2 is in continuation of exercise 1. So we are making effort for our self-development continuously, and with this we are observing our body also. Right, Didi? So Yes, Bhaiya. go through these steps of exercise 1. Then definitely you will be in harmony. Yes, Bhaiya. Thank you. That's okay. So we have R.K. Mohanty ji with us. Namaste, भैया. नमस्कार भैया, नमस्कार सबको, to all my co-explorers. Am I audible? Yes, भैया, yes. आज we discuss in a very broad sense, self and body, they are separate units. Though we had some flashes from the beginning till this age. Now all these things going to get clear. Self is a consciousness unit, and a body is a material unity that we are discussing. What self can see, body cannot. But whenever any controversy or any discontentment comes, I simply remember the exercise 1, that whatever is uncomfortable, I will not keep in myself. Because uncomfortable things, I simply separate it. And I am separating it. Just one suggestion I like to take from you, Bhaiya, sir. Sanskar enriches the self, or self enriches the sanskar. That a very slight confusion in me.
Let me be clarified, please. Namaskar. So sanskar means, in layman language, sanskar means whatever I have accepted as important for my life. Whatever thing I think that this is very important for me is my sanskar. Right? So whatever you have assumed about the reality and you think it is right, it is true, this assumption is my sanskar. It may be based on reality, it may not be based on reality. So if it is not based on your reality, the reality, it will disturb our consciousness. It will disturb me. Right? So we are evaluating again and again whether these sanskar are aligned with reality or not. So you have made your sanskar and now you are unhappy with your sanskar. That's why there is a need to be aware. So who is accepting this? I am accepting. And who is experiencing this unhappiness? I am experiencing. And who will find the way to come out of this? I will find out the way. Right. So, Bhaiya, it's just 6:31. So, you may raise your hand tomorrow morning. In beginning of the session, I will definitely start with your this question. Okay, Right. namaskar. Okay, Bhaiya. So I will call you in the morning. We will discuss it in depth. Okay. So thank you everyone for participating in this morning session actively in this step 1 of exercise 2. So I request Sunil Bhaiya to start Hindi session. Namaste Bhaiya. Ji Bhaiya, Namaste. So thank you so much, Gopal Bhaiya, for this enriching and enlightening session in today morning. Thank you all the participants for your active participation with questions and sharing in the morning session. So as we do regularly, this you can have a look at this announcement. You can have a look at the chat box. It is available, so you can visit the WhatsApp group of morning session every day to get the daily updates and the assignments, and you can do that and share it on the next day. The links to access the previous recordings are also available in the chat box, and the names and numbers of faculty volunteers to whom you can contact, they're also available in the chat box. Now we have announced this launch of this online international conference of UHP that is going to happen from 22nd to 24th of November 2024. The link to register is available in the chat box. You can share the link to the potential delegates in the country and outside the country. And also you can share this to the policymakers of your institution for registration. And you can contact the regional coordinators for any assistance in this regard. So I thank once again all the participants of this English morning session. Now we switch over to the Hindi part. Namaste Shambhala Didi for the Hindi facilitation, and Namaste Ishan Bhaiya for the moderation part. Thank you. Niti Didi for the moderation part. Thank you. Ji, thank you so much, Sunil Bhaiya, Tara Bhaiya, Gopal Bhaiya for English part of the session. Thank you all. अभी हम हिंदी सत्र की शुरुआत करते हैं. सभी का इस सत्र में स्वागत है. सभी को नमस्ते. नमस्ते शर्मिला दीदी. जी नमस्ते निधि जी. सभी को नमस्ते. सभी का स्वागत है हिंदी सत्र में. तो हम अभ्यास 2 कर रहे हैं. पहले हमने अभ्यास 1 करी. अभ्यास 1 के 7 स्टेप्स करे और उनको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं. तो सूचना के तौर पे हमारी अभ्यास 1 खत्म हो गई है. लेकिन जो अपने अंदर काम है देखने का, अभ्यास 1 के 7 स्टेप्स अपने अंदर हम देखते रहेंगे
और वो करते करते अब हम अभ्यास 2 पर आ गए। तो वो भी करेंगे। अभ्यास 1 के स्टेप्स भी अपने अंदर भी देखना है और साथ ही साथ अभ्यास 2 अपने से शरीर को देखना और मेरे और शरीर के बीच में जो आदान-प्रदान हो रहा है, उसको देखना। ये काम हम अभ्यास 2 में कर रहे हैं। देखने वाला मैं ही हूँ। मुझ में ये कैपेसिटी है, हम सब में ये पोटेंशियल है कि हम अपने अंदर चल रही क्रियाओं को भी देख पाएँ और साथ ही साथ शरीर को और बाहर को। तो अभी हम शरीर की जो बात हो रही थी, तो पहले तो हमने वो बात करी कि जो हम वर्कशॉप में सुनते आए हैं कि ये 2 डिस्टिंक्ट अलग-अलग इकाइयाँ हैं, जिनके सह-अस्तित्व को हम मानव के रूप में पहचानते हैं। इनकी आवश्यकताएँ अलग हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति अलग है, क्रियाएँ अलग हैं, निर्वाह अलग-अलग प्रकार के हैं। निर्वाह में भी जो शरीर का निर्वाह है, वो पहचानना निर्वाह करना के आधार पर है। जो हमारा निर्वाह है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, तो हम देखते हैं कि हमारा पहचानना निर्वाह करना जानने और मानने के आधार पर है। तो शरीर में कोई चॉइस नहीं है, पहचानना निर्वाह करना निश्चित ढंग से होता है, जैसे कि हर जड़ इकाई में। लेकिन जहाँ चैतन्य की बात आती है, जहाँ मानव की बात आती है, तो हमारा पहचानना निर्वाह करना अभी बदलता रह सकता है, बदलता ही रहता है, क्योंकि ये हमारे मानने पर निर्भर है। हमारा मानना बदलता है तो हमारा पहचानना निर्वाह करना भी बदल जाता है। कब हमारा पहचानना निर्वाह करना निश्चित होगा? जब हम जानने के आधार पर पहचानेंगे और निर्वाह करेंगे। तब हमारा पहचानना निर्वाह करना निश्चित हो जाएगा, क्योंकि जानना निश्चित है। तो उसका प्रयास साथ ही साथ हो रहा है ये पूरे अभ्यास में। फिर हमने थोड़ी-सी बात करी थी कि मेरे और शरीर के बीच जो आदान-प्रदान हो रहा है, वो केवल सूचना का है। मैंने शरीर को कुछ संकेत दिया, ये संकेत इंस्ट्रक्शन कुछ सूचना है, इन्फॉर्मेशन है। कुछ फिजिकल ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा नहीं। इसी तरह शरीर में बहुत सी संवेदनाएं उठ रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, उनके तहत संवेदनाएं उठ रही हैं। मैंने किसी संवेदना को पढ़ा, ये संवेदना एक सूचना है। सेंसेशन इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन। और उसके तहत मैंने कुछ निर्णय बनाया, कुछ अर्थ निकाला, कुछ निर्णय बनाया और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी मैंने माना हुआ है, उसके हिसाब से मैंने अर्थ दिया और फिर शरीर को संकेत दिया। तो इसमें हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि मैं एक इकाई हूँ, चैतन्य, और मैं ये देख सकती हूँ कि मैं इकाई हूँ, मैं हूँ, आई एग्जिस्ट, क्योंकि मुझ में चल रही क्रियाओं को मैं देख सकती हूँ। मुझ में जो कल्पनाशीलता चल रही है उसको मैं देख पाती हूँ, जिसको हमने काफी डिटेल में एक्सरसाइज 1 में किया।
मैं ये भी देख पाती हूँ कि शरीर है। शरीर को हम कैसे देखेंगे? तो शरीर में संवेदनाएं उठ रही हैं, उनको जब मैं देखती हूँ या पढ़ती हूँ या नोटिस करती हूँ, तो मुझे दिखता है कि शरीर भी है। तो ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसको देखने की बात थी। कल का जो हमारा होम असाइनमेंट था वो भी इसी को लेकर था। क्या आप देख पा रहे हैं कि आप स्वयं हैं, यानी कि आप एग्जिस्ट करते हैं? आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि आप एग्जिस्ट करते हैं? अब इसमें जो बात कही गई है उसको दोहराना नहीं है, अपने अंदर देखने का प्रयास करना है। क्या आप देख पा रहे हैं कि शरीर भी है? आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? शरीर को आंखों से देखकर या किसी और तरह से? क्या आप देख सकते हैं कि आप भी हैं और शरीर भी है? क्या आप इसे तब भी देख सकते हैं जब आपकी आंखें बंद हैं? और यदि आंखें बंद करने पर देख पाते हैं कि शरीर है, तो वो कैसे जाना, कैसे देखा? तो कल पूरा दिन ये सब देखना था कि आप और शरीर, ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। कल थोड़े हैंड्स भी रेज थे जिन तक हम पहुंच नहीं पाए थे, आज उनको भी ले लेते हैं। चामुंडेश्वरी जी, या तो ये इंग्लिश के समय से हैंड रेज्ड है या फिर रश्मि त्रिपाठी जी। जी जी, जहाँ तक है हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से ही जान पा रहे थे कि जी, बाहर क्या चल रहा, बाहर से जो हमारी कनेक्टिविटी थी। क्योंकि जो है हमारी आंखें तो बंद थी लेकिन कान जो है वो सुन रहे थे। अब मान लीजिए कोई अगर खुशबू भी आई तो वो भी हम सूंघ पाए। तो इसी से हम जान पाए थे। क्या जान पाए थे? जी जी, वही कल पूछा गया था ना कि हमें कैसे पता चल रहा था कि बाहर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। हमने ये तो नहीं पूछा था बाहर की एक्टिविटीज, हमने पूछा था हमने कैसे जाना कि शरीर है। हाँ, यही शरीर कैसे है। मतलब कि हाँ, जैसे कि हम जब मेडिटेट कर रहे थे तो हम अपने उसमें थे, मेडिटेशन में जब थे, तो शरीर कैसे है ये हमें इन्हीं चीजों से पता चल रहा था। वो तो हमने जब एनालाइज किया ना, जी मतलब इस डिफरेंस को आप देखें कि जब हमारा ध्यान बाहर है ना, जी। तो जैसे चिड़िया बोल रही हैं, हम चिड़ियों की आवाज सुन रहे हैं, हम्म। है ना? तो हमारा ध्यान शरीर पर है या बाहर चिड़िया पर है? क्या लगता है? दीदी वो जा रहा था चिड़िया पे। वही, मतलब हाँ। कोई बात है ना। तो हम अभी भी ना बाहर की दुनिया के बारे में जब हम एनालाइज करके देखते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ, शरीर के थ्रू ही हो रहा है, शरीर के सेंस जी। ऑर्गन्स के थ्रू ही हो रहा है। लेकिन यहाँ एनालिसिस की बात नहीं हो रही। उसी हम्म समय क्या हम देख पा रहे हैं? मतलब जैसे कि कानों से कुछ सुना, हम्म है ना? अब कानों से सुना, लेकिन सुन क्या रहे हैं, उधर हमारा ध्यान है। हो सकता है चिड़िया की आवाज आई और हम ये सोचने लग गए कि कौन सी चिड़िया बोल रही है, कैसी दिखती है। आंखें बंद है
लेकिन हमारे मन में हो सकता है ये चल रहा हो कि ये चिड़िया, ये जो आवाज है ये सो एंड सो चिड़िया की है, ये ऐसी दिखती है ना? हाँ एग्जाम्पल। दीदी, कभी कभी हुआ ऐसा। हाँ, हाँ तो वहां क्या हो रहा है कि हमारा ध्यान तो एक्चुअली बाहर है, और हो सकता है कि हम शरीर के प्रति बेहोश हैं उस समय। ये डिफरेंस देख पा रहे हैं आप? जी 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 है ना? जी तो उस समय हमारा ध्यान शरीर पर है ही नहीं, जी हम शरीर के माध्यम से बाहर देख रहे हैं। आंखें बंद हैं तो भी बाहर की इंफॉर्मेशन, सूचना हम ले रहे हैं शरीर के माध्यम से। जी अब हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि हम शरीर को देखें। डिफरेंस समझ में आया ना? हम्म तो शरीर को देखना यानी सपोज बाहर की जो हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, वो हवा का स्पर्श हमारे स्किन से जब छुआ, हमको छुआ या स्किन को छुआ, शरीर के जो चमड़ी है उस पर पड़ा, तो हमें एक शीतलता का आभास हुआ, है ना? हाँ जी तो उससे हम ये देख पाए कि ये शरीर पर कुछ अच्छा लगा, है ना? हाँ जी इसी तरह जो कल बात हो रही थी कि आपने पैर जमीन पर रखा हम्म और कुछ ठंडा महसूस हुआ, जी उसको भी देखें तो पता चला शरीर है। या आप एक किसी पोजीशन में बैठे थे, आपको किसी शरीर के किसी अंग में दर्द हुआ, तो आपको पता चला शरीर है। जी जी, एक और एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है, ये डिफरेंस? जी हाँ, एक कि होता जब है कि हमें हम शरीर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन बेहोशी में। हम्म एक और होता है कि हमारा ध्यान गया कि शरीर है, हम्म अब हम होश में रहकर शरीर है इसको देख रहे हैं। जी ठीक है ना? ये दोनों में जी अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, बताइए। जी, एक ये भी था कि जैसे बैठे हुए थे, मेडिटेट कर रहे हैं जैसे, तो थोड़ी देर में जब अगर कोई भी साउंड नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आ, हम पता नहीं कहाँ चले गए। तो उसमें जब हल्की सी आवाज आई तो ऐसा लगा अच्छा ये मतलब ये चीज, ये भी फीलिंग हुई। जैसे कभी कभी जब बहुत लोनलीनेस हो जाती है, बिल्कुल ही साउंड नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, हम्म। तो वो जो फीलिंग होती है, लगता है कि पता नहीं कहाँ हम पहुंच गए। जी वो जी, उसमें मैं कहूंगी कि जब अकेलेपन भी का एहसास, ऐसा लगे, हैं? जी, अकेलेपन का एहसास, कि मतलब हाँ बिल्कुल जैसे लगता था लोनलीनेस। जी हाँ। तो अभी क्या है कि हम लोग का जो पूरा अ, अभ्यास है ना, जी वो बाहर देखने का, बाहर करने का, व्यवहार में, इसमें है जी लार्जली, है ना? जी तो अकेले बैठना और अपने अंदर देखना, इसका अभ्यास अभी है नहीं। जी तो ऐसे कभी कभी लगेगा कि जब हम बैठे तो एक बेचैनी सी हुई, जी या तो ध्यान आया कि ये बाहर करना था, जी या फिर बाहर की जो आवाजें हैं उन पर ध्यान गया, जी है ना? हम्म या फिर जैसे आपने कहा अकेलेपन का एहसास, जी है ना? तो जी उसमें भी ये देखना जरूरी है कि हमारा भाव क्या है। अभ्यास एक में जो हम बात कर रहे थे ना, जी तो यदि हमारा भाव सही है, सही यानी सहज स्वीकृत है, तो हम आराम हम्म में होंगे, फिर जी हमें कोई परेशानी नहीं है। अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था कोविड के टाइम,
बहुत से लोग बहुत बेचैन हो गए कि हम घर में ही बंद हो गए, हम कैसे क्या करें। जी। कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या गया, अब हम कैसे जिए। हम जी। बाहर नहीं जा सकते, हम मॉल नहीं जा सकते, हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, हम मिलने नहीं जा सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको शांति महसूस हुई, ठीक है, बढ़िया है, हम घर में आराम करेंगे। ये डिफरेंस देख रहे हैं, परिस्थिति सेम है सबके लिए, लेकिन एक व्यक्ति अंदर से दुखी है, परेशान है, एक व्यक्ति आराम में है। ये इम्पोर्टेंट बात है ना। जी। जी। खैर हम थोड़ा डिटूर ले लिया एक्सरसाइज 1 में, बट वो भी जरूरी है, करते रहें। तो ये सब देखना है ना, अपने अंदर भी क्या चल रहा है। और अभी हम क्योंकि शरीर की बात हो रही है अभ्यास 2 में, तो आगे आगे के स्टेप्स में भी शरीर पर और ध्यान देंगे, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। बढ़िया, थैंक यू। संध्या खन्ना जी। नमस्ते दीदी। दीदी, जो स्वयं के द्वारा शरीर को देखना, ये जो प्रयास चल रहा है अभी तक, इसमें हमारी यही मान्यता सी बनी हुई है, अभी तक की जो स्टडीज हमने करी, ये सब कुछ ब्रेन कर रहा है। और अब एक यकायक ये चीज आ जाती है कि मैं के द्वारा देखना है शरीर की संवेदनाओं को, और फिर उससे जो संकेत स्वयं के द्वारा जो संकेत आ रहे हैं, उसके द्वारा फिर शरीर एक्शन कर रहा है। तो अभी ना अपने अंदर एक ये टिकाव बनाने के लिए ये ब्रेन क्या कर रहा है, इसको भी थोड़ा और समझना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा सा और हमें समझाएंगे तो और हमारे अंदर टिकाव बनेगा। देखिए, अल्टीमेटली तो हम सबको ये चीज अपने लिए अपने अंदर देखनी होगी। अभी क्या है, बहुत क्लैरिटी नहीं है, मेडिकल साइंस में भी इतनी क्लैरिटी नहीं है। पढ़ाते तो हम यही हैं कि ब्रेन ही सब कुछ कर रहा है, ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, कुछ दूसरे तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमें हाँ डिप्रेशन जी। या बुरा लगता है, और ये सब बातें, है हम्म। ना। हम्म। बट फिर हम ये भी बात करते हैं कि हमें ब्रेन को रीवायर करना होगा। ये सुना है आपने वर्ड? नहीं, ये कम हुआ, मतलब अभी तक यही है कि ये वाले हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, इनके द्वारा इमोशंस, हमारा हमारा सुख दुख सब कुछ, यही ये तो थोड़ा बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का। तो उससे लगता है कि वहां से कंट्रोल हो रहा है या स्वयं के द्वारा हो रहा है, इसको एक बार टिकाना है अपने अंदर। वो अभी वो टिकाना यानी अगर हमने कुछ कह दिया, आपने सुन लिया, मान लिया, तो वो हाँ। टिकेगा। क्योंकि अभी हमने कुछ और माना हुआ है, हम कुछ हम्म। और कहते हैं, आप उसको मान लेते हैं, हम्म। है ना। तो अल्टीमेटली तो अपने अंदर देखेंगे, बट बात ये हो रही है कि इसको खुला रखें, है ना, कि हम्म। ब्रेन कोई हार्मोन रिलीज कर रहा है इसलिए हमें कुछ हो रहा है, या हम अपना भाव बदल रहे हैं उससे ब्रेन में कुछ हार्मोन्स, डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। जैसे कि अभी हम कहते हैं ना कि ये तो स्टडीज में भी आया है कि जब आप दूसरे के लिए कुछ करते हैं, हम्म। क्या करते हैं, तो शरीर में कुछ अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जी। है ना। जी। अब ये इसलिए हो रहा है कि ब्रेन ने कुछ रिलीज किया, या इसलिए हो रहा है कि हमने तय किया कि दूसरे हम्म। के लिए हमारा भाव सही हुआ, हमने कुछ देखा, उनके प्रति हमारे लिए, हमारे में अच्छा भाव उमड़ा, और फिर ब्रेन पर उसका प्रभाव पड़ा, या ब्रेन से कुछ हार्मोन्स रिलीज हुए। ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। परंपरा में, ट्रेडिशन में बहुत कुछ दिया है, बट हम्म। मेडिकल साइंस में अभी उसकी बात नहीं हो रही।
होपफुली उस पर भी और धीरे धीरे रिसर्च होगा तो और क्लियर होगी ये बात, है ना। अभी जो हमने जी। एक्सरसाइज 1 में किया, हम्म, एक क्षण में आप अपना भाव बदल लेते हैं। वो कैसे होता है ना। हमने बात कही कुछ और हमने तय किया कि हमें भाव बदलना है, तुरंत बदल गया और आपको आराम महसूस हुआ। अब ये मैं कर रही हूँ या ब्रेन कर रहा है ना। इसको खुला रखें, एकदम खुला रखें। अभी जो शरीर है ना, उसको देखेंगे तो जब शरीर की मृत्यु होती है, हाँ जी। ब्रेन वैसे का वैसे ही है उसके अंदर, ब्रेन को कुछ नहीं हुआ, हम्म, लेकिन शरीर में कुछ हो ही नहीं रहा अभी। मीन्स जो किसी की डेथ हुई, आप उनको बुलाते हैं, वो नहीं सुन पाते। वो कैसे हो रहा है? ब्रेन तो वैसा का वैसे ही है। अगर आप खोल के देखें शरीर, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को ना, जो लोग मेडिकल लाइन से हैं, ब्रेन तो वैसे का वैसा ही दिखता है, लेकिन बदला क्या शरीर में? एटलीस्ट वो एक खुलापन रखना चाहिए। अब तो बहुत से, एक फ्रेंच डॉक्टर हैं, पिम वैन पमल या ऐसा कुछ है उनका नाम, आई थिंक वो जी। कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्होंने अच्छा। काफी सी रिसर्च करी है, जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बोलते हैं ना, एनडीईज, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि खत्म हो गया सब, लेकिन हम्म, फिर वो लौट आए। तो उनके ऊपर बहुत सी रिसर्च करी और हम्म, उन्होंने ये पाया कि ये हम्म, लोग जिनके जो डेथ एक्सपीरियंसेस हुए थे, हम्म, जब वो लौट आए, मींस हम्म, मेडिकल साइंस ने ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दिया कि ब्रेन खत्म हो गया, अब इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, उतना सब हो गया। हम्म, दे वर डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड। हम्म, लेकिन जब वो लौट आए, हम्म, लौट आए यानी फिर से शरीर एक्टिव हो हाँ गया, कुछ बोलने लगे, वो सब हुआ, तब पता चला तो जी। उनको पूरे चीज का रिकॉल था कि कमरे में तब क्या हो रहा था, कौन क्या बोल रहा था कि ये ब्रेन डेड हो गया, या ये इंसान खत्म हो गया, या फैमिली को कुछ बताया जा रहा था, कौन कौन देख रहा था उनको, कौन दूसरे कमरे में बात कर रहा था वो भी उनको दिख रहा था। वो सब उन्होंने रिकॉल करके बोल दिया, वर्ड फॉर वर्ड, बहुत क्लैरिटी के साथ। अब ये कैसे हो गया? ब्रेन तो डेड था, फिर ये क्या चीज थी जिससे कि उनको ये सब स्पष्ट था और वो पूरा रिकॉल कर पाए, पूरी कॉन्वर्सेशन इतना विविडली, इतना क्लियरली, क्लैरिटी के साथ? ये कैसे हो गया? तो प्रश्न उठ रहे हैं और ये भी दिखेगा कि बहुत सी चीजों के आंसर्स नहीं है अभी मेडिकल साइंस में। हम्म, अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, उसमें हेल्थ जी। का जो पार्ट है, उसमें हम ये सब बातें रखेंगे, अच्छा, अच्छा। पैनल डिस्कशन होगा। इस चीज को हमें, जब हम सेल्फ को लाते हैं ना, तो बहुत से प्रश्न अपने आप सुलझ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जी दीदी। हम तो अभी खुला रखें, आगे अ, जैसे जैसे प्रयास करते चीजें तो रहेंगे क्लियर कि हो रही हैं, जैसे आपने ये अभी डेथ वाला एग्जाम्पल से बताया, और या फिर हम भावों को देखते हैं, हमारे अंदर जो प्यार उठना, और या फिर जो भी हमें बताया, जो पहले बताया है, जो हमारे अंदर सारे एक दूसरे के प्रति विश्वास होना, प्यार होना, वहां पर तो वो समझ आता है कि वो सेल्फ ही कर पा रहा है, वो ब्रेन थोड़ी ना कर रहा है, वो कोई और चीज है। बट ये वाला बहुत सारी ये मेमोरीज, ये जो चीजें हमारे अंदर अभी बैठी हुई हैं कि वो सब कुछ हमारा ब्रेन में है, वो अभी धीरे धीरे
सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे अभी आपने 2-3 एग्जाम्पल से बताया, इससे भी एक अच्छा सा खुला हुआ है अपने मन में। क्या कहते थे? और भी एक बात है कि जैसे ना लोगों को कुछ कुछ याद रहता है एक शरीर यात्रा से दूसरे शरीर यात्रा में। अब वहां ब्रेन तो बदल गया ना, शरीर तो खत्म हो गया। जैसे कि चाइल्ड प्रोडिजीज होती हैं, है ना? चाइल्ड प्रोडिजी समझते हैं आप? जैसे कि कोई बच्चा है, बचपन में ही वो लंबे लंबे श्लोक बोल लेता है। हाँ जी। तो किसी ने सिखाया नहीं है, बट वो अपने आप ही बोले जा रहा है। वो कैसे हो गया? चांस की बात है, कोई मिरेकल है, या पिछले शरीर यात्रा में उसने सीखा था और उसको अभी तक याद है। कितने सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ बच्चे बता देते हैं कि हम पिछली यात्रा में हमारा नाम ये था, हम वहां वहां रहते थे और चेक किया है तो ऐसा था। अब ये कैसे हो गया? ब्रेन तो बदल गया ना, शरीर तो खत्म हो गया था, ये तो दूसरा शरीर है, दूसरा ब्रेन है। तो ये सब प्रश्न उठते ही हैं, इसको खुला ही रखें, ठीक है ना? दीदी एक चीज और पूछें, जैसे अभी आपकी बात से ये लगा कि जैसे आपने कहा कि एक शरीर छोड़ने के बाद मतलब शरीर से जीवन जो सेल्फ हम कह रहे हैं चैतन्य, ये अलग हुआ तो मृत्यु हुई हमारी और उसके बाद उनको सब पता रह गया। तो इससे ये लगता है कि मतलब जो सेल्फ है उसका मतलब उसको तो वैसे बाद में भी जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो इसका मतलब उस सेल्फ को तो सब वो रहता ही है पता, वो हमेशा ही रहेगा, अमर है तो उसको तो वो हमारी सारी जर्नी हमेशा से रहेगी, वो हमें बाद में भी देख रहे हैं जो भी और लोग रह गए। इसका आप में कुछ कुछ प्रश्न है या नहीं मैं ऑब्जर्वेशन है? नहीं मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरे अंदर अभी क्लैरिटी नहीं है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ दीदी जी। क्या क्वेश्चन क्या है आपका? मैं ये पूछ रही हूँ, अभी जो जिस जैसे आपने एक डॉक्टर साहब की बात अभी बताई, एग्जाम्पल दिया, उनसे ये चीज लगती है कि वो सेल्फ देख रहा था जब उसने अपना शरीर छोड़ा। तो अब इसका मतलब बाकी सभी हम सब का भी जब हम नहीं होंगे तो हमारा सेल्फ तो रहेगा, वो तब भी ऑब्जर्व कर पाएगा सब कुछ। पहली बात तो आपने कहा हम नहीं रहेंगे तो हमारा सेल्फ रहेगा, तो हम कौन है? हम हाँ जी, क्वेश्चन ही मतलब लैंग्वेज इज रॉन्ग। अब समझ आ रही है कि लैंग्वेज इज लैंग्वेज। रॉन्ग, यानी कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हमको साइंस ने ऐसा पढ़ाया है हाँ जी, हाँ, ना? नहीं, बिल्कुल। जी हाँ, जी तो देखिए, अभी हम डेप्थ तक नहीं जाते, अभी जो जी देख पाते हैं ना उसको देख जी लेते हैं। जी दीदी, हाँ जी हाँ, तो अभी भी दिखेगा कि जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि 10 साल पहले इस दिन को आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आप बता सकते हैं क्या? नहीं दीदी, हाँ नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? आप ही ने तो खाया था, हम्म, शरीर भी था, आप भी थे, क्यों नहीं बता सकते? मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी इस चीज को। बिल्कुल, आपके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन 10 साल पहले आपके जन्मदिन पे आपके कुछ जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब इकट्ठे हुए और बहुत मजा आया, ये आपको पूछेंगे तो शायद याद होगा, बहुत बढ़िया दीदी, हाँ जी दीदी, है ना? तो हाँ जो जी, हमें महत्वपूर्ण लगता है हम उसको याद रखते हैं, जो हमें महत्वपूर्ण नहीं लगता हम उसको छोड़ देते हैं। बहुत सुंदर। जी थैंक यू, से क्लियरिटी बन रही है। um, थैंक यू दीदी। थैंक यू। पूर्वी निसार जी। नमस्ते दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, सभी को नमस्ते। तो दीदी, ये
शरीर की जो भौतिक रासायनिक क्रिया है उसके बारे में मैंने पहले भी एक बार आपसे प्रश्न किया था, लेकिन तभी थोड़ा ऐसा प्रश्न था कि मैं उसको फ्रेम नहीं कर पाई थी। तो अगर यहाँ पे मैं पूछ सकती हूँ, ऐसा आपको लग रहा है तो मैं पूछूं? हाँ, तो तभी हमारा डिस्कशन हुआ था कि अगर मुझे भूख लग रही है और मुझे वो तो सहज स्वीकृति नहीं है, अगर बहुत ज्यादा भूख लगी है तो फिर मुझे खाना है, लेकिन फिर आपने यही बताया था कि मैं हेल्दी खाना खाऊं, वो शायद उसको सहज स्वीकृति बोलेंगे क्या, कि मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ और अनहेल्दी फूड नहीं खा रही? एक्चुअली मेरा प्रश्न इससे अलग थोड़ा ये है कि सेक्सुअल डिजायर्स भी इसी में आएंगी अगर, तो उसमें सहज स्वीकृति का भाव क्या रहेगा? देखिए, सहज स्वीकृति की जब आप बात करते हैं ना, तो या तो हम भाव से जोड़ के देखें तो क्लियर होता है, या फिर हम कम से कम पर्पस की बात करें, नहीं तो आप उलझ जाएंगे, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि भाव जो हमने बात करी, वो तो हम एक्सरसाइज 1 में क्लियर हो गया था ना। जो भी भाव हमें दिख रहा है वो मुझे सहज स्वीकृत है या नहीं है, वो तो तुरंत ही मालूम हो जाता है। अगर हम पर्पस पे जाते हैं, तो जैसे आपने एग्जांपल दिया फूड का, तो फूड का पर्पस क्या है? न्यूट्रिशन, शरीर को, न्यूट्रिशन ऑफ द बॉडी, शरीर राइट। का पोषण, है ना। तो अब हम शरीर का पोषण करना चाहते हैं या शरीर को हानि पहुंचाना चाहते हैं, ये प्रश्न जब आप पूछते हैं तो आपको सहज स्वीकृति से तुरंत जवाब मिलता है कि नहीं? क्या जी। करना चाहते हैं, पोषण या हानि? हाँ, पोषण ही करना चाहते हैं, पोषण सही करना है। चाहते हैं। तो फिर जब आप अपनी सहज स्वीकृति को रेफर करेंगे तो आप वही खाना खाएंगे जो शरीर के लिए पोषक है। पोषक है, हाँ हाँ, जब सही आप है। उसको रेफर नहीं कर रहे हैं तब आप कुछ भी खाएंगे, जो भी आपको टेस्ट जिसका अच्छा लगता है, बिना इस पर ध्यान दिए कि वो पोषक है कि नहीं है। नहीं है, हाँ हाँ। इसी तरह जब आपने बात करी सेक्सुअल डिजायर की, है ना, अब उसका पर्पस क्या था कि अपनी जो प्रोजेनी है, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट बॉडी वो बने, रिप्रोडक्शन, हाँ, रिप्रोडक्शन, ये राइट। उसका पर्पस था। तो हमें पर्पस क्लियर है तो हम पर्पस के तहत चीजों को करेंगे। पर्पस क्लियर नहीं है, हम बॉडी को सेंसेशन के लिए यूज कर रहे हैं, अपने प्लेजर के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर हम कुछ और करेंगे। तो वो हुई सेफ स्वीकृति। ये क्लियर हुआ था? जी जी दीदी, थैंक यू दीदी। बसंत सोनी जी। हाँ, नमस्ते दीदी और नमस्ते सभी को। तो दीदी, कल का एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं शेयरिंग करना चाह रहा हूँ जी। कि कल परस्परता में एक घटना घटी और जिसमें मेरी तरफ से है ना दूसरे वाले की गलती बताई, मैंने दूसरे की कमी बताई और वो कमी थी भी, लेकिन जैसे मैंने ये बताया सामने से बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। तो वो प्रतिक्रिया जब मेरे शरीर पे पड़ा, एक पूरा एक कंपन, एक तरंग सा मेरे शरीर में पैदा हुआ और जिससे मेरे अंदर भी प्रतिक्रिया हुई कि सामने वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो उसने भी है ना मेरे अंदर कमियां बताई, ऐसे है ना। तो फिर वो एक प्रतिक्रिया का साइकिल चालू हो गया। तो उसमें फिर मेरा ध्यान गया कि ये जो प्रतिक्रिया हो रही है, तो स्टेप 1 पर कि मैंने अपनी कल्पनाशीलता में फिर ध्यान दिया कि क्या हो रहा है। तो वहां जब ध्यान दिया तो मेरे को पता लगा कि मैं तो प्रतिक्रिया में हो गया, रह गया हूँ, है ना। तो फिर मैंने तुरंत अपने दृष्टा के भाव को देखा कि दृष्टा की जगह पर मेरे को जाना है इस प्रतिक्रिया से निकलने के लिए, नहीं तो मेरे अंदर भी कंपन पैदा हो गया।
जैसे ही मैं वो दृष्टा के भाव पे गया तो ये जो प्रतिक्रिया है बिल्कुल शांत हो गई, है ना, कि सामने वाला वो विचलित है, वो दिख रहा है, लेकिन स्वयं के अंदर एकदम शांति आ गई। जैसे कोई चीज है ना भाई, धीरे धीरे करके उसकी रफ्तार खत्म हो जाती है और वो रफ्तार खत्म हो गई, जैसे ऐसा जैसे छूती नहीं है वो बातें। तो एक ये ऑब्जर्वेशन रहा कि सामने वाले का जो मैं गलती बता रहा हूँ वो एक किस्म का अवमूल्यन कर रहा हूँ, और वो अवमूल्यन से वो अपमानित होकर ही प्रतिक्रिया कर रहे हैं। एक तो ये ऑब्जर्वेशन गया मेरा दीदी इस चीज पे, है ना। और दूसरा दूसरा दृष्टा के भाव पर जाकर मैं ना अपनी ऊपर की क्रिया में गया, तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन आया कि मैं यहाँ ऐसी स्थिति में शांत हूँ, नहीं तो जैसे ही मैं नीचे की क्रिया में उतरता हूँ तो फिर बह जाता हूँ। बढ़िया। दूसरा दूसरा ऑब्जर्वेशन ये रहा मेरा, है ना। उसके बाद फिर ये भाव बना कि भी संबंध का भाव है मेरा, है ना, ये जो सह स्वीकृति वाला मामला है ना। तो जब मैं उस दृष्टि से देखने के लिए गया तो मेरे को ये जो व्यापक का जो संबंध है वो ही मूल केंद्र में सबसे पहले पकड़ में आया, कि यहाँ से ये संबंध है और इस संबंध का फैलाव है ये, है ना। तो वो संबंध स्पष्ट नहीं हो रहा था, वहां वो एक स्पष्ट हुआ कि भी ये जो संबंध है सबसे ऊपर मेरा जो व्यापक के सह अस्तित्व में मैं हूँ, जो दृष्टा के भाव में हूँ, है ना। तो यहाँ ये स्थिर हुआ है ना। तो कहीं कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो ऊपर की स्थिति है यही एक एक स्वभावगति या शांत स्थिति है जिसमें मुझ में स्थिरता बनी रहती है। तो ये कुछ झलक मिली दीदी मेरे को, है ना। बढ़िया। तो इसकी शेयरिंग करना चाह रहा था। बहुत बढ़िया। देखिए, जैसे जैसे हम दृष्टा भाव में बने रहेंगे ना, वैसे वैसे ये दिखेगा कि हमारे अंदर हम शांत होते जाते हैं। हाँ बढ़िया है। दीदी। बहुत अच्छा। और ये एक अच्छा, मतलब एक कल से ये अपने आप में बड़ा एक बार बार में ये एहसास हो रहा है कि हाँ ये एक सच्चाई और वास्तविकता है जिसपे अभी ध्यान बार बार में लेकर जाना पड़ता है, जा नहीं रहा है। जी, अभी प्रयास पूर्वक कर रहे हैं। हाँ एक समय संभावना तो सबके अंदर है कि एक समय होगा कि हमें इतना प्रयास नहीं लगेगा और हम इस चीज को आराम से कर पाएंगे, है ना। बढ़िया है। धन्यवाद धन्यवाद। जी। चामुंडेश्वरी जी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। रुंझुन जी। रुंझुन जी, माइक अनम्यूटेड है लेकिन आवाज नहीं आ रही। सुरेंद्र प्रताप जी। दीदी नमस्कार, सभी साधकों को नमस्कार। दीदी बताइए। अभी की चर्चा में ये बात आ रही थी कि शरीर शांत हो गया था और कुछ समय बाद वो फिर जीवित हो गया। तो इस केस में जीवन वापस लौटना चाहता था क्या, और उसको फेवरेबल परिस्थितियां मिली तो वो फिर सरवाइव कर गया, या कुछ और हुआ। जैसे मेडिकल साइंस तो कहती है ब्रेन डेड हो गया तो खत्म हो गया, तो जिसमें जीवन का रोल, जीवन फिर भी वेट कर रहा था कि अगर ये शरीर फेवरेबल होता है तो मैं वापस आ जाऊं इसमें, और उसको वो फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो सरवाइव कर गया। एक तो ये प्रश्न है मेरा। दूसरा प्रश्न ये मेरा दीदी, मुझे पहला टिकट हुआ था 8 तारीख को, हाथ और पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे। अब 10 दिन में, 8 दिन में अस्पताल में भर्ती रहा। तो उसके बाद फिर तो मैं ये जानना चाहता, ये जीवन क्या करता है? जीवन का, शरीर जीवन का वाहन है, ये इसको मेंटेन करता है, इसको सरवाइव करता है, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो जीवन का कोई फिर उसको जाना ही पड़ेगा। तो ये शरीर को स्वस्थ बनाने में इसका कोई रोल है या दवाइयाँ रोल करती हैं? क्योंकि दवाइयाँ से आदमी अस्पताल भर्ती होता है, उस चीज से ठीक होता है। तो ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया दीदी, और आप मेडिकल साइंस से हैं तो आप प्रॉपरली इसको रिप्लाई कर सकते हैं। प्लीज इसको रिप्लाई कर दीजिए। थैंक यू। जी, देखिए, अभी हम जब देख नहीं पाते ना कि हमारा क्या रोल है शरीर के साथ, तो हमें लगता है कि मेडिकल साइंस ही सब कर रही है।
दवाइयों से ही ऐसा पॉसिबल है। जी हम ये नहीं देख पाते कि हमारा इसमें क्या रोल है। रोल है ना? जी तो जैसे जैसे हम इस चीज को और अच्छे से देखेंगे, समझेंगे शरीर को, तो दिखेगा कि शरीर जो ये इकाई है ये एक निश्चित ढंग से चलती है। शरीर अपना एक निश्चित ढंग से चलता है। जब बच्चा जी पैदा होता है 99 पॉइंट कितने % तो हेल्दी ही होते हैं बच्चे। जी 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 सही लेकिन बात। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उसका ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं तो वहां गड़बड़ आती है। अब ये हार्ट डिजीज, मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब प्रिवेंटेबल है। स्ट्रोक, तो जी देखेंगे कि 80% से ज्यादा बीमारियां प्रिवेंटेबल हैं। यदि हमें ध्यान हो इसका, हम उस चीज को समझेंगे तो हम इनका अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं ताकि हमें दवाइयों पर निर्भर ना होना पड़े। क्या? ठीक है? जब हमने यूएचवी वर्कशॉप में वो प्रोग्राम ऑफ हेल्थ देखा था ना, इनटेक, रूटीन, लेबर एक्सरसाइज, पॉस्चर्स, ब्रेथ रेगुलेशन, ये याद है आपको? नहीं, मैंने नहीं देखा था दीदी, कुछ प्रॉब्लम। नहीं नहीं, वो जो प्रोग्राम ऑफ हेल्थ की बात होती है ना यूएचवी वर्कशॉप में, वो आपके हाँ ध्यान में है? हाँ हाँ अगर उसके तहत हम चलेंगे ना कि शरीर में क्या डालना है इनटेक के मामले में ना, सिर्फ खाना नहीं, पानी, हवा, सनलाइट, धूप, ये सब भी जरूरी है ना? हेल्दी। हाँ, हेल्दी रहने के लिए रूटीन क्या रहना चाहिए, चीजें एक निश्चित समय से चलती हैं अपने अंदर। जैसे बाहर एक पर्टिकुलर टाइम पे धूप निकलती है, उस टाइम शरीर में कुछ अलग क्रिया चलती है, रात के समय कुछ अलग क्रिया चलती है। जब हमें इसका होश नहीं तो हम कभी भी कुछ भी करते हैं, कभी भी खाते हैं, पीते हैं, वो सब से शरीर में हानि पहुंचती है ना? ठीक है। तो जैसे जैसे हम समझेंगे तो दिखेगा कि हमारा बहुत बड़ा रोल है इसमें। और जहां तक रही दवाइयों की बात, तो जब हम वो रोल नहीं देखते हैं, उसको हम ठीक नहीं रख पाते हैं, तो फिर हम किसी और चीज का सहारा लेते हैं। लेकिन वहां जी भी आप देखेंगे दवाई ले ली, कुछ हद तक चीजें ठीक हुई लगा, बट फिर वही हालत हो जाएगी यदि हमने अपने रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देखा, जी है ना? दीदी, सेल्फ का क्या रोल रहता है यहाँ कि बॉडी सरवाइव करे, हेल्दी रहे, तो उसमें वो कुछ अपना रोल अदा करता है क्या, या वो बिल्कुल न्यूट्रल है? अभी यही तो बात हो रही है, प्रोग्राम ऑफ हेल्थ कौन तय कर रहा है? हाँ सेल्फ कर ठीक, रहा है कि कोई और कर रहा है? सेल्फ कर रहा है, ठीक है। सेल्फ तो कर रहा है ना? हाँ ठीक है? नहीं, इन द केस ऑफ सीरियस एलिमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेल्फ? कोई भी सीरियस एलिमेंट भी हो, जी है ना, हम ठीक है टेक्नोलॉजी से कुछ मदद ले लेते हैं शरीर को ठीक रखने में, जी बट श्योर। अल्टीमेटली क्या इससे हम शरीर को कंटिन्यू ठीक रख सकते हैं? नहीं। वो उस पर डिपेंड होगा कि हम अपना रोल निभा रहे हैं ठीक से या नहीं। जी हम सही चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं नहीं, सही टाइम से उठ रहे हैं, सो रहे हैं नहीं, ये सब सब बातों का शरीर पर प्रभाव पड़ेगा ही ना। मैं, और ये सेल्फ डाइट करता है? वही तो, अभी हम सोचते हैं डायबिटीज हो गया, ब्लड शुगर के लिए गोली खा ली, ठीक हो गया। वो ठीक कहाँ हुआ? हम्म, वो तो ब्लड शुगर कम हो गया। अभी साइंस भी बोलती है कि वो क्योर नहीं है, उससे तो आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए हम दवा दे रहे हैं आपको, और आपको सिर्फ लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा। जी तो इसका क्या मतलब हुआ? क्योर तो नहीं हुआ ना। सही है। तो अपने रोल को देखना पड़ेगा।
सिम्टम्स थोड़े फेवरेबल हो जाते हैं मेडिसिन से। हाँ। और दूसरा दीदी, जो पहले अभी डिस्कशन चल रहा था कि जब ब्रेन डेड हो गया, बॉडी शांत हो गया, तो ब्रेन फिर भी एक प्रयास में रहता है कि बॉडी सरवाइव कर जाए और मैं वापस प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, बहुत वेट के बाद बॉडी को शरीर मिलता है। कुछ ऐसा ऐसा भी है क्या? आप क्या कह रहे हैं थोड़ा उसको देखिए, कौन चाहता है कि वापस आ जाए, शरीर या सेल्फ? इसको सेल्फ सोचना पड़ता था, है ना? सेल्फ हाँ। सेल्फ ज्यादा ही सरवाइव हो जाए, हमें वापस से उसमें पहुंच जाए और अपन सेल्फ डेवलपमेंट के काम करें। देखिए, इन सब बातों में जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे, जी है ना? शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग सुसाइड कमिट करते ही है ना, जी तो शरीर तो वही मानेगा जो हम कह रहे हैं जी, उससे, ठीक बात। है ना? लेकिन हमारी क्या हालत है ना? जब हम खुश होते हैं तो हम उसके बारे में नहीं सोचते। अभी भी अगर देखें तो कोई बहुत बीमार है ना, हम्म, तो एक क्षण को जब उनको बहुत तकलीफ है तो बोलते हैं हाय भगवान मुझे उठा लो, हाँ बोलते कि नहीं बोलते? जी दूसरे ही क्षण उनके बच्चे आ जाते हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, है ना? भैया फिर वो कहीं जाना नहीं चाहते फिर वो ठीक बात। यहीं खुश है ना? तो हाँ अल्टीमेटली कौन निर्णय ले रहा है, क्या निर्णय ले रहा है, उसको कभी और देखेंगे। अभी डेथ तक क्यों जाना, अभी जो है उसको देख लेते हैं, ठीक यदि है? वो दृष्टाभाव की बात आई थी, जरा थोड़ा वो और क्लियर कर दीजिए जी, अभी। देखिए ये बात हो रही थी कि जब हम अपनी कल्पनाशीलता में बह जाते हैं ना, तो जैसे कि हमारे में विरोध का भाव हुआ, हम दुखी हो जाते हैं, हाँ जी है ना? हाँ जी और हम उसमें बहते जाते हैं, रिएक्शन दूसरी तरफ से भी आया, हमने और रिएक्शन किया, और बस वो चलते जाता है, हम दुखी रहते हैं। ठीक बात। जैसे हम दृष्टा भाव में आ गए, यानी कि हमने ऊपर से दृष्टा की जगह से देखना शुरू किया, वहां से जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, लेकिन हम दुखी नहीं होते, हम शांत होते हैं, क्योंकि हम अब कल्पनाशीलता में उलझे हुए नहीं हैं, हम उसको थोड़ी दूरी बना के देख रहे हैं, दृष्टा से देख रहे हैं, ऐसा है। जी हाँ उसको अपने अंदर देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, जैसा कि अभी शेयरिंग हुई थी ना। हाँ हाँ, वही पूछा। जी, ठीक तो है। दृष्टाभाव कहाँ चित्त से आता है कि बुद्धि से आता है? देखिए, आप फिर वही काम कर रहे हैं जो नहीं करने का है, हमें शब्दों में नहीं उलझना है, अच्छा हमें ठीक है तो ठीक। सिर्फ अपने अंदर देखना है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है, लेकिन अगर आप शब्दों में जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो ठीक है? कल्पनाशीलता जो उठ रही है, उसको उसको इग्नोर करके न्यूट्रल में रहना है, ऐसा कह रहे हैं आप? रहना है। अभी तो हम अपने अंदर देखें क्या चल रहा है, बस। वो बस। जैसे जैसे देखने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, चीजें ऐसे लगेगा अपने आप ही हो रही हैं अच्छा। ना। जैसे ही अपने। आप देखेंगे कि ये भाव मेरे अंदर देखो विरोध का दिखा, उसी क्षण आपको ये भी दिखेगा कि अब मैं इससे परेशान भी नहीं हो रहा, मैं हाँ इससे शांति से सह देख पा रहा हूँ, है ठीक ना? है। हाँ, सह स्वीकृति नहीं है उसकी प्रति। ठीक है, बिल्कुल। थैंक ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। रुंजुन जी, आपका माइक अनम्यूटेड है, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बीना बुंदेला जी। बीना बुंदेला जी। लक्ष्मी प्रसाद जी। लक्ष्मी प्रसाद जी। सुनीता जोशी जी।
मेरी हाँ दीदी, आवाज आ नमस्ते रही है? दीदी। हाँ नमस्ते, हाँ बताइए। नहीं नहीं, ठीक हो गया दीदी। उसमें थोड़ा और अपने को खुला रखना पड़ेगा। जो वो उसी बात में अभी जो भैया बोल रहे थे ना, ये सक्सेना भैया कि वो जो जीवन जो है अलग हो के कैसे वो ये कर लिया करके, तो उसको अच्छा से एक बार और बताएंगे कभी। अभी तो समय भी हो गया है, थोड़ा और सुनने का मन फिर। हाँ देखिए, वो सब प्रश्न जो है ना, एक तरह से कौतूहल के प्रश्न, वो अपने को किसी उसमें हेल्प नहीं करते कि हम मान लेते हैं किसी की बात, उसमें कुछ ज्यादा उपकार नहीं है। हम जैसे हाँ जैसे ये एक्सरसाइज को और गहराई में जाएंगे ना, वैसे वैसे जी। अपने लिए क्लियर होगा वो। हाँ ठीक है। नहीं, मैं वो कह रहा था जी कि शरीर आवश्यक है, जैसे एक बात कहे। और शरीर नहीं रहने से भी आदमी समझ सकता है क्या, या अपने में बने रहता है, वो कैसे स्थिति बनेगा। उसको मैं वो कर रहा था, मैंने उसको ऐसा जानने का मेरा वो नहीं है। मैंने ये हाँ शरीर हाँ। आवश्यक है समझने के लिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। देखिए, शरीर से हम कुछ सूचना ले रहे हैं, जी दीदी। बाहर से कुछ सूचना ले रहे हैं, जी है ना। बाहर की कुछ सूचना हमें मिल रही है शरीर के द्वारा, ठीक है जी ना। जी। तो अभी ये हम अभ्यास के स्टेप्स कर रहे हैं, हाँ ये हमारे अंदर देखने में सहायक है, हाँ शरीर। और ये हम शरीर के माध्यम से कर रहे हैं कि नहीं। जी जी जी। जो मैं बात कर रही हूँ, हाँ जी। आप सुन रहे हैं, है ना। ठीक बात। तो ये शरीर के माध्यम से हम कुछ सूचना ले रहे हैं। हाँ देख रहा कौन है अपने अंदर? हाँ, देखने वाला तो मैं। हाँ। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अल्टीमेटली जो देखने का काम है, उसमें शरीर का कोई रोल नहीं हाँ ये बात तो है है अभी। ना। जी लेकिन बाहर से जो भी सूचना लेनी है, जी। जो सहायक हो सकती है, उसके लिए शरीर का रोल हाँ है ना। जी। वो दोनों बातों को समझ लेंगे तो क्लियर हो जाता है फिर। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक, अभी वो इतने बात तो समझ में आता है दीदी, लेकिन वो जो अभी एक तो एग्जाम्पल के तौर में जो रखे ना, वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि कैसे स्थिति बनेगा करके। चलिए तो ठीक है, फिर उसको थोड़ा और मन लगाऊंगा। जी, फिर कभी बात कर देंगे उस पर। हाँ सर, ठीक। हाँ हाँ दीदी, हाँ दीदी। ठीक, नमस्ते दीदी। नमस्ते। सुनीता जोशी जी। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी प्रश्न मेरा ये है कि आवाज थोड़ी बढ़ा इसमें सकते हैं, आवाज बहुत फेंट आ रही है, समय भी बहुत कम है थोड़ा। मेरा प्रश्न ये है दीदी, अभी भी हम में और शरीर में दोनों में अंतर भी समझ रहे हैं, और हम उसके ऐसे प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानी यहाँ आती है कि हम जानते हुए भी, दूसरों को अपने जैसा समझते हुए भी, वही बात बार बार रिपीट हो जाती है। जैसे कि गुस्सा आ जाना, देख कर किसी चीज को, किसी व्यक्ति के कर्म को हम देख लिया और हम समझ रहे हैं कि ये गलत है, फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाते। ये तो हम समझ रहे हैं कि हमारे अंदर कमी है, लेकिन होने के बाद कमी ये है कि हमें क्रोध आ रहा है। अब क्रोध क्यों आ रहा है ये भी हम देख पा रहे हैं, तो इसके बाद भी वो चीज समझ नहीं पाते हैं, उस बात को हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अब समस्या ये है कि जब हमें पता है कि मैं और शरीर दोनों अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ हैं, फिर हम इन दोनों को एक साथ मिला के ऐसा कर्म हमसे कैसे हो जाता है। अगर हम दोनों को अलग समझे तब तो हम ठीक है, क्योंकि हमारी मैं है, हम अपने आप से समझे कि हमारे शरीर से कुछ गलत नहीं हो, हम किसी से गलत ना बोले या समझ ले कि ये गलत है, फिर हम इसको नहीं। तो यहाँ पे भी हौच पौच वाली स्थिति आ जाती है। वही वही, हमें क्लैरिटी नहीं है, हमने बहुत कुछ माना हुआ है। क्या माना हाँ है, क्या हमारे संस्कार हैं, जैसे जैसे हम अंदर देखेंगे तो ही दिखेंगे वो, है ना। तो उन हम्म, संस्कारों को भी ठीक करना है, जो सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है उनको छोड़ देना है, जो लाइन में है उनको रख लेना है।
लेकिन कौन सा संस्कार कैसा है वो तो तभी दिखेगा जब हम अंदर अपने अंदर ध्यान देंगे, है ना। तो जैसे जैसे वो करेंगे तो क्लियर होगा। अभी समय हो रहा है, अगर कोई क्विक कुछ बात प्रश्न छूटा है तो आप बोल दें, नहीं तो अब ये हम कैसे डील करें कि जैसे हमारे सामने कोई हमारा अपना है या हमारे तो सभी अपने हैं ना, हम अपने सामने किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख पाते, और हमारी मैं कह रही है कि इसको आप रोको या इसे आप एडवाइस करो। अब हमारी मैं कह रही है तो एडवाइस तो शरीर के माध्यम से ही की जाएगी, पहले उससे बात बातों तो से की जाएगी। देखिए सबसे पहली बात तो हमारी मैं कौन है उसको क्लियर करें, है ना। मैं हूं या मेरा कोई मैं हूं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, जी है जी। ना। तो हमारी मैं है या मैं ही हूँ, वो मेरा सेल्फ कहेंगे या मैं सेल्फ हूँ ऐसा कहेंगे, है ना। यहाँ दिखता है कि हमने कितना माना हुआ है ना। तो जैसे जैसे हमारा मानना ठीक होगा चीजें ठीक होने लगेंगी। अभी हमने बहुत कुछ माना हुआ है, इसकी फिर कभी बात करेंगे, अभी समय हो गया है, ठीक है ना। ठीक है दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। निधि जी। निधि जी, मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आवाज आ रही है। आई थिंक तो हाँ टाइम हो गया। यस यस। तो धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का। तो सभी साथियों का भी इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस है। एक मैसेज हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में है, तो हम सभी इस कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस महीने की 31 लास्ट डेट है, और हमारे जो साथी, स्पेशली जो साथी दूसरे देश में है और जो यूएचवी में रुचि रखते हैं, उनके साथ में बात करके उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के लिए बता सकते हैं। और एक मैसेज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में है। हम सभी साथी इसे जरूर ज्वाइन करें। हमारे सारी असाइनमेंट नोट्स इसी ग्रुप में आती है, और जो प्रीवियस मॉर्निंग सेशंस हुए थे उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी इसके साथ में अवेलेबल है, तो उसका भी हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद, नमस्ते। तो दीदी आज के लिए हम रुके। जी रोक सकते हैं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।